अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमने कंपैरेटिव एनाटमी स्टार्ट की है सर्कुलेटरी सिस्टम की। उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स देखी थी कि दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इनका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे थे जिसमें हमने ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में देखा था। ब्लड वेसल्स को हम डिटेल में देख चुके हैं। आज हम ब्लड द सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिटेल से देखेंगे। आज हम ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। Blood is a circulatory fluid that flows within the blood vessels, and it is a special type of connective tissue which is derived from the mesoderm. Blood is regarded as flowing tissue. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, इसलिए हम इसको टिश्यू कहते हैं। एंड दिस टिश्यू हैज़ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़। And the branch of science which deals with the study of blood, that is called as, and blood forming tissues and disorders associated with the blood, this is called as hematology. हीम का जो वर्ड है ये ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ ग्रीक वर्ड, एंड लोगोस मीन स्टडी, सो इट इज़ स्टडी ऑफ ब्लड, हीमाटोलॉजी। अगर हम ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो इट्स कलर इज़ ब्राइट रेड इन आर्टरीज ड्यू टू its combination with oxygen and in the form of oxyhemoglobin, and it is dark red in veins due to its combination with carbon dioxide, that is in the form of carboxyhemoglobin, and it makes about 8% of the body mass with pH 7.3 to 7.45, slightly alkaline pH. Taste is salty, and temperature is 37 degrees C, 38 degrees C, according to the temperature of the body of the vertebrates, as different vertebrates have different body temperature. And its viscosity is more than water, 3 to 4 times more viscous than water, and it is about 5% by volume in the body of the vertebrates. If we talk about its composition, अगर हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी टिश्यू को इसके जो कंपोनेंट सेल्स होते हैं उसमें सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक जो है वो प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल्स हैं। ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक प्लाज्मा दैट मेक्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड, एंड द अदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज सेलुलर एलिमेंट्स आर द ब्लड सेल्स विच मेक अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। सेलुलर एलिमेंट्स को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड इन ह्यूमन बींग्स इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि इसकी कंपोजिशन जो है ब्लड के अंदर वो 55% होती है, इसकी परसेंटेज जो है। Plasma is a viscous fluid and it contains about 90% of the water and 10% dissolved solids, and 7 to 8% of plasma is made up of different types of proteins which are albumin, fibrinogen and globulin proteins. This is the composition of the plasma. प्लाज्मा हैज़, मैंने आपको भी बताया कि प्लाज्मा हैव 90% 95% ऑफ द वाटर एंड 7 to 8% ऑफ द प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन, ये तीन प्रोटीन्स आ जाती हैं। इट आल्सो हैव सम अदर solutes which make up 1.5% of the plasma, and these includes the electrolyte ions which have sodium chloride, calcium, magnesium chloride ions, etc. Gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and other nutrients which include glucose, amino acids, fatty acids, and also the waste products in the form of urea, uric acid, ammonia and creatinine. This is all about the composition of the plasma. Plasma performs many functions inside the body of the vertebrates. For example, the watery part of the plasma, it absorbs, transports and releases heat.
albumin of the plasma, it maintains the osmotic balance of the body. Globulin proteins, they are the major part of the defensive mechanisms and the form of antibodies which make up the immunity of the body. Fibrinogen, they are involved in the clotting of the blood in case of any injury or cut on the body. And electrolytic ions such as sodium chloride, calcium, etc., they are involved in the pH, maintaining the pH of the blood and also pH buffering of the body fluids. So this is all about the functions of the plasma inside the body of the vertebrates. देन वी टॉक अबाउट दी ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में जो है वो तीन तरह के जो मेजर ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिसमें जो है आरबीसीज जो हैं विच आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स विच आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. सो अब हम आरबीसीज को वन बाय वन इन ब्लड सेल्स को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम आरबीसीज को देखते हैं. RBCs are red blood cells or erythrocytes. There are most numerous type of cells in the blood, and there are about 25 trillion erythrocytes in the human body. In most vertebrates, they may have different shapes. They may be oval shape, nucleated, flattened cells, and their cytoplasm is tightly packed within the hemoglobin. Erythrocytes of the mammals, if we talk about the erythrocytes of the mammals are biconcave in shape and circular discs without nucleus. So the red blood cells of the mammals are enucleated, without any nucleus, with exception of the camel and llamas. These two mammals have oval nucleated red blood cells. ठीक है, यानी तमाम मैमल्स के जो आरबीसीज होते हैं ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं. बट कैमल एंड लामा आर द टू मैमल्स विच हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज. और लोअर वर्टिब्रेट्स के जो आरबीसीज होते हैं ये भी न्यूक्लिएटेड होते हैं. एरिथ्रोसाइट्स अपीयर रेड, बट अ सिंगल एरिथ्रोसाइट इज एक्चुअली ग्रीनिश येलो इन कलर. अगर हम अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो मेन इसका कंपोनेंट है एरिथ्रोसाइट्स का, दैट इज़ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंटेड हीम ग्रुप. ठीक है, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है, दैट इज़ अ सिंपल प्रोटीन, और इसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंटेड हीम ग्रुप है. Due to its property of attaching dissolved molecules such as oxygen to itself and giving up again in the various parts of the body where oxygen concentration is low. ठीक है, normally hemoglobin is purple red in color. अगर हम देखें तो इसका नॉर्मली जो कलर होता है वो पर्पल रेड होता है, बट व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देन इट बिकम्स ब्राइट रेड इन कलर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. If we talk about their size, there is great variation in the size of the RBCs. Erythrocytes of the man is about 7 to 8 micron in diameter, while that of goat is only half of it. यानी आप कह लें कि 3 to 4 micron in diameter. Erythrocytes are larger in lower classes than in mammals and birds. एवरेज लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो हर सेल का चूँकि एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है. तो एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो आरबीसीज का कितना हो सकता है? इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ लेस देन अ मंथ, मोस्टली 120 डेज़ का अगर हम एवरेज इसका लाइफ स्पैन बताएं तो 120 डेज़ आलमोस्ट हैं. इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दे आर फॉर्म्ड इन द लिवर. फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इसकी लिवर में होती है, और रेड बोन मैरो में होती है, और स्प्लीन में होती है इन embryonic stages. After birth and after hatching, and in the adults where these RBCs are formed, they are formed in the center of the flat bones and the breast bones, and also in the epiphysis of the long bones of the tetrapods. And the production or the synthesis or formation of the RBCs is called as erythropoiesis. यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू RBCs बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है, इनकी प्रोडक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस. एडल्ट्स में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं इसकी फॉर्मेशन की, हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स. और चिल्ड्रन में, बच्चों में
अप टू 5 years, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। और फिटस जो होता है, फिटस में ये कहाँ पे बनते हैं, ये लिवर में बनते हैं और रेड बोन मैरो में, या फिर ये स्प्लीन में बनते हैं। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके जनरल नॉलेज के लिए लिखी हुई है कि अगर बॉडी के अंदर आरबीसीज का नंबर बहुत इंक्रीज कर जाता है तो इसको पोलीसाइथीमिया कहते हैं, और अगर आरबीसीज का नंबर बहुत डिक्रीज हो जाता है तो इसको एरिथ्रोपीनिया कहते हैं। ये जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया है। हाँ जी, सेकेंड क्लास ऑफ द ब्लड सेल्स इज ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर वाइट ब्लड कार्पसल्स भी इनको कहते हैं। दे आर लेस न्यूमरस देन दी प्लेटलेट्स एंड दी आरबीसीज। यानी सबसे ज़्यादा जो ब्लड के अंदर सेल्स हैं वो आरबीसीज हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो सेल्स हैं दे आर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल की अगर हम कलर की बात करते हैं तो दे आर कलरलेस एंड ट्रांसलूसेंट एंड दे हैव अ न्यूक्लियस एंड majority ऑफ them हैव लार्जर देन द एरिथ्रोसाइट्स। इनका साइज जो है वो एरिथ्रोसाइट से बड़ा होता है। In amniotes, leukocytes are about 1% of the blood corpuscles. In fishes, they may be 10% or more. अगर हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं तो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पे हम इनको दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं WBCs को। इनकी दो मेजर टाइप्स हैं, वन इज ग्रेन्यूलर and other one is agranular. Granular white blood cells, they have a granular cytoplasm, and these granular white blood cells, they have further three types. One is basophil, the other one is acidophil, uh, eosinophils, basophils एंड न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को आप इओसिनोफिल्स भी कह सकते हैं, और तीसरी जो है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। इसी तरह ए ग्रेन्यूलर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, देयर साइटोप्लाज्म इज विदाउट एनी ग्रेन्यूल्स and they have further two categories are types. One is monocytes and the other one are lymphocytes. तो अब हम इन टाइप्स को, WBCs की टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। Production of WBCs or white blood cells in the body is called as leukopoiesis. ये कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है। पहले हम इसकी प्रोडक्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ होती है। एडल्ट्स में जो है वो ये लिवर, स्प्लीन, टॉन्सल्स, बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है, और फिटस में इसकी जो प्रोडक्शन है वो लिवर, स्प्लीन में होती है। Increase in the number of WBCs is known as leukocytosis. Decrease in the number of WBCs is called as leukopenia, and pathological increase in the WBCs is known as leukemia or blood cancer. तो सबसे पहले जो है वो हम ग्रेन्यूलर WBCs जो है वो इनको देख लेते हैं। ग्रेन्यूलर WBCs में मैंने आपको बताया कि इसकी जो है वो तीन टाइप्स हैं। ग्रेनुलर जो WBCs हैं इनकी थ्री टाइप्स हैं, एक इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स, दे हैव लार्जर सेल्स विद इरेगुलर न्यूक्लियस विच इज़ मोर आर लेस डिवाइडेड इनटू लोब्स। अगर हम जनरली बात करते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू लोब्स, लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई होते हैं, एंड दे आर दे हैव हाईली ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। उसी तरह मैंने आपको पहले बता दिए। और ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है ये 3 to 4 days होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम न्यूट्रोफिल्स को देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, देयर न्यूक्लियस इज विद 3 to 4 लोब्स। मैंने आपको बताया कि इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं वो लोब्यूलेटेड होते हैं, यानी न्यूक्लियस जो है वो लोब्स की फॉर्म में होता है। एंड अगर इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे स्टेन विद न्यूट्रियल डाई हेमाटॉक्सिलिन। देयर फंक्शन बॉडी में क्या है, दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस। तो मोस्टली जो बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, यानी ईटन अप ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, दिस इज डन बाय द न्यूट्रोफिल्स। लोकेशन इनकी जहाँ प्रोडक्शन होती है वो इनकी बोन मैरो है। द सेकेंड कैटेगरी इज द eosinophils are acidophils. Their nucleus with 2 lobes, and their staining properties, they are stained with acidic dye eosine. That's why they are also called as eosinophils, and they combat the effect of histamine in the allergic reactions. They are also produced in the bone marrow. Basophils are
दोज WBCs their nucleus is with indistinctive lobes, होते हैं लेकिन distinctly अलग अलग lobes नज़र नहीं आते. If we talk about their staining properties, they are stained with basic dye methylene blue. They liberate heparin and histamine in allergic reactions to intensify inflammatory responses. यानी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड देयर लोकेशन फॉर प्रोडक्शन इज आल्सो बोन मैरो. Second type of WBCs are agranular white blood cells. These have two categories: lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are smallest of the WBCs and they have large round nucleus. They produced antibodies in the form, they may be B lymphocytes or T lymphocytes, and they are mostly the part of immune system of the body, and they are produced in the bone marrow, spleen and tonsils. About monocytes, they are the largest of the WBCs with large kidney shaped nucleus. They ingest microorganisms and they are also produced in the bone marrow. Then the third type of blood cells which are called as platelets. प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं. दे आर ओवल फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन मैरो सेल्स, और इनको हम सेल्स नहीं कहते बल्कि हम इनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. हम इसके लिए मोस्टली फ्रेगमेंट्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं. दे आर स्मॉलर इन साइज देन WBCs एंड आल्सो RBCs. दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग अलॉन्ग विद द फिब्रिनोजिन प्रोटीन. Their production of platelets is called as thrombopoiesis, and the platelets are the fragments of the large cells called megakaryocytes that remain in the bone marrow. Increase in the number of platelets is known as thrombocytosis, and decrease in the number of platelets is known as thrombocytopenia. Blood clotting is the main process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it is shed out. तो यहाँ तक जो है ये आपने ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड की जो है वो इसकी टाइप्स देख ली हैं, और इसके जो है वो आपने फंक्शन जो है वो आपने देख लिए हैं.